मैं तबलीगी जमात से था भी नहीं, लेकिन पुलिस और मीडिया ने मुझे तबलीगी बनाकर जो पेश किया है, मेरा सिर्फ़ जुर्म इतना था कि मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी का मैं सदर हूँ और मुझे 5 साल जो इस तकलीफ़ में मेरे साथी को और मुझे गुज़रे हैं, अल्लाह ये दिन किसी को ना दिखाए। This is one of those cases which shouldn't have been filed to begin with. तो उन्होंने कहा ये लोग कौन है। उन्होंने कहा सर इन पे केस करा था छोटी मस्जिद से अंदर फाटक तेलियान की। तो उन्होंने कहा इन पे एक और केस डालो। केस डालो फिर मैम 5 साल पहले जब कोरोना फैल रहा था, तो एक शाम मैंने न्यूज़ पर सुना कि पीएम साहब की तकरीर में ये बताया गया है कोरोना तेज़ी पर है, जो जहाँ स्टे किया हुआ है वहीं रुका रहे, मतलब माइग्रेट ना करे इधर-उधर। इसी दौरान हमारी छोटी मस्जिद, जिस छोटी मस्जिद का मैं सदर हूँ, वहाँ मलेशिया की लोग 10 आदमी या 11 लोग ठहरे हुए थे। जब पीएम की स्पीच में ये बता दिया गया कि जो जहाँ पर है, वो माइग्रेट ना करे, वहीं रुक जाए, तो वो लोग यहीं पर रुके हुए थे। हम उन्हें माइग्रेट कैसे करते और परमिशन किससे लेते? मैं तो घर पर जिस दिन बुलाया गया है, मैं डिनर कर रहा था, 8 साढ़े 8 बजे थे रात के। पुलिस चौकी से एक साहब आते हैं कि आपसे कुछ मालूमात करनी है। वो मालूमात के बहाने से मुझे बुलाकर वहाँ ये केस हुआ कि हमारे खिलाफ़ केस बनाया गया। In the narrow lanes of Old Delhi's Turkman Gate and Daryaganj, a few families are finally heaving a sigh of relief. It has been 5 long years. Hello and welcome to The Print. I'm Sagrika Kisu with my colleague and video journalist Sakiba Kamal Khan. During the height of COVID-19 lockdown, a few families were accused of sheltering foreign nationals linked to Tablighi Jamaat. FIRs were filed, charge sheets were registered, and their reputations were dragged through the mud. Recently, the Delhi High Court has quashed all the 16 FIRs, citing plainly lack of evidence, no violation of law, and no whisper of COVID-19 infection. For the 70 Indian citizens registered in the FIR, mostly from the mosque and muhallas of Old Delhi, the justice has finally been delivered. The justice which was delayed for too long. This is one of those cases which shouldn't have been filed to begin with. It's just unfortunate that it's taken so long for it to close, but we are very glad that finally there is an end point to this matter. But how did the case begin? It started with foreign nationals associated with the Tablighi Jamaat and led to many Indian Muslims being booked for sheltering them during the height of COVID pandemic. Ashima Mandala, along with Mandakini Singh, represented the petitioners in the Delhi High Court. The success of the case is nothing short of a remarkable feat for the duo, who have now become celebrities of sorts, with congratulatory calls pouring in for a case that at one point seemed like it would never end. And when the lockdown was imposed, there were certain foreign nationals who had come to India from 48 different countries. So about 955 foreign nationals in Delhi alone. And they, of course, to complete their Jamaat, they visit the Nizamuddin Markaz. There was a lot of restriction on movement within the country, and which also, of course, led to the closing of flights and hotels and all other kinds of services apart from essential services. So those foreign nationals which found themselves to be in India and could have not left now owing to there being no flights, they had no other recourse but to be where they are. But that was then converted into a criminal case where there was a certain directive that had come up which said that if there is any violation of Disaster Management Act or the IPC,
Mohammad Aftab was grieving the loss of his 9-year-old son when the Delhi police came knocking his door in 2020 during the COVID pandemic. They asked him to come along for questioning. It was at the police station that he learned that the Choti Masjid, where he was a committee member, was under scrutiny for hosting Tablighi Jamaat visitors. But he couldn't process any of it. Relatives began to distance themselves, neighbors whispered. When he walked through the lane, people pointed, murmuring that 16 FIRs had been filed against him. वहाँ हमें अंदर जाके उन्होंने बिठा दिया, टेबल पे बिठाया पहले। फिर कुछ देर बाद एक पुलिस वाला आता है, वो हमसे मालूम करता है कि कमेटी में और कितने लोग हैं आपके। तो मैंने कहा कमेटी में इतने ही हैं। हुआ क्या है? कहने लगा वो तो आपको अभी पता लगेगा, आपने जमात रोक रखी थी, ये सारे में कोरोना फैला रहा है। तो बच्चा एक्सपायर वैसे ही हुआ था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, गम ही इतना था। इसका बच्चा एक्सपायर हुआ है, अभी 10-12 दिन हुए हैं उसे मरे हुए। तो उन्होंने वो बात भी नहीं सुनी। उन्होंने कहा इनका नाम है, तो उन्होंने SHO साहब ने कहा कि 3 जनों पे तो कम से कम केस बनेगा ही। उन्होंने केस बना दिया। हम घर चले गए, 3-4 घंटे बाद उन्होंने हमारे मोबाइल ले लिए। तो उन्होंने फिर 1 हफ्ते बाद हमें पुलिस स्टेशन बुलाया रात के टाइम, 8 या 9 बज रहे थे। हम तीनों गए। तीनों के जाने के बाद हम खड़े हुए थे। जिस हवलदार ने हमें बुलाया था उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी देते हैं। तो इतने में SHO साहब आ गए विदाउट यूनिफॉर्म। रात का टाइम था, हो सकता है कहीं टेल लगा के आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये लोग कौन है? उन्होंने कहा सर इन पे केस करा था छोटी मस्जिद से अंदर फाटक तेलियान की। तो उन्होंने कहा इन पे एक और केस डालो। The second FIRs actually had Indian nationals named in there as well. So 16 out of the 29 FIRs had both foreigners as well as Indians. So the learned trial court refused to take cognizance so far as the foreigners are concerned because they were already tried in the main FIRs, but they took cognizance against the Indian nationals. Now the offences against the Indian nationals were that you have housed these foreign nationals, whether inside your own homes or inside masjids, despite a prohibitory order. Now the prohibitory order in question only said that you cannot have a religious congregation. It said nothing about housing any person. And the second limb was that this has resulted in disease of spread of disease. तो तबलीग वाले कोरोना किस तरह से फैला रहे थे ये तो मेरी आज तक समझ में नहीं आया। जो बाद में इन्होंने भी न्यूज़ चैनलों पे आया और बाद में इन्होंने भी माफ़िया मांगी, तो ये तो जग जाहिर हो गया। तो कोई एक जना तो कोरोना कैसे फैला रहा है? कोरोना तो सारे इंसानों की नहीं है था, तबलीग वालों की नहीं है। ये तबलीग वाले कहीं से लेके तो नहीं आए थे ये बीमारी, ये तो पूरे वर्ल्ड की बीमारी है। अब आप उस पर किसी एक जमात को या किसी एक उसको खसूसी टारगेट बना दो, वो टारगेट तो समझ में नहीं आता। आपने जो चीज़ करी नहीं उसके लिए आपका पूरा घर परेशान है। घर में आपकी वाइफ है, आपके बेटे हैं, आपके माँ बाप हैं, वो सब परेशान होते हैं कि पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलेगा, ये कब तक इससे छुटकारा मिलेगा। अब आप यकीन मानिए जब ये नोटिस आता था और तारीख आती थी हमारे पास, तो हमारी रात की नींदें उड़ जाती थी कि हमने करा क्या है। हमें आज तक यही नहीं मालूम चला कि चलो जी हम रोड पे पकड़े गए हों, लॉकडाउन का हमने उल्लंघन करा हो, हम रोडों पे फिर रहे हैं, बगैर मास्क के फिर रहे हैं, अफरा तफरी कर रहे हैं, कानून की हमने बात नहीं मानी। मगर इसमें तो कोई ना, हमें तो घर से बुलाया, हम घर से वहाँ गए, उन्होंने हम पे केस कर दी। 5 साल बाद ये जितना पुलिस ने हाईलाइट करा, ये 5 साल के जो हमारे इसी को हाईलाइट करेंगे, इनका केस बरी हुआ है या डिसमिस किया गया है, वो इज़्ज़त हमारी मिल जाएगी दोबारा। ये जो हिरासमेंट 5 साल लगातार हमें पुलिस की तरफ से मिली है, या कोर्ट जाना पड़ता था हमें सुबह से शाम तक लाइन में लगकर, तो वो उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती। या कंपनसेशन कोई देगा उसका?
ये दिनों की तकलीफ़ें जो गुजरी हैं कोई लौटाएगा? मीडिया भी नहीं लौटा सकती, ना दिखा भी नहीं सकती इस चीज़ को। तो वो जो तकलीफ़ हुई है वो अल्लाह किसी को तकलीफ़ से ना गुजारे। कुछ तकलीफ़ें बयान नहीं की जाती, जिस पर गुजरती है वही समझ सकता है, ना उसकी पूर्ति होगी अब। मैम ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर कोई क्रिमिनल हूँ या मेरा कोई रिकॉर्ड ख़राब है। मैं एजुकेटेड फैमिली से हूँ। मेरी बड़ी बेटी पीएचडी करी हुई है, छोटी बेटी लॉयर है, बेटा एमबीए करा है, अच्छी कंपनी में काम करते हैं। हम सब बड़े साफ़ सुथरे, बड़े अच्छे शहरी हैं। लेकिन जिस तरह हमारी यहाँ पर छवि पेश की गई पुलिस के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, और जो मिसबिहेव किया गया, उससे हमारा बड़ा तकलीफ़ पहुँची है। हमारे पर चिन्ह लग गया कि हमारे एक दाग सा होता है ना। ये जब कोर्ट में जाते थे तो जज साहिबान जो भी मौजूद होती थी वो कहते आप प्लेड गिल्टी कर लीजिए, प्लेड गिल्टी कर लीजिए, केस ख़त्म। वो मुझे फ़ोर्स करते थे। मैंने प्लेड गिल्टी करने का मतलब है ये ऑफेंस जो करा है, ये केस हमने किया है, ये जुर्म हमने किया जो अब बना है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि हमारा आइन और हमारे हिंदुस्तान का कानून है, सच जीतेगा उसमें। The prince spoke to the families and the lawyers to give you a glimpse into what transpired in the last 5 years. This was Sagrika Kisu with her colleague and video journalist Sakiba Kamal Khan for the print from Old Delhi. Keep following us for more such videos.